નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ટાટ HS 2026ની પરીક્ષા આપવાની જે તૈયારી કરી રહ્યા છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ વિડીયો ખરેખર ખૂબ મહત્ત્વનો રહેશે. હિન્દી વિષય વસ્તુ અને હિન્દી આધારિત પ્રશ્નો કેવા પરીક્ષામાં પૂછાય છે એ માહિતી તમને યુટ્યુબમાં બહુ ઓછી જોવા મળે છે. ખાસ કરીને આપણું જે પ્રિલિમ પરીક્ષાનું જે એક પેપર છે, જે 80 માર્કનું વિષય વસ્તુ આધારિત તમારા પાઠ્યપુસ્તક આધારિત જે પૂછાવાનું છે, એની અંદર બહુ વિકલ્પ એટલે કે વિકલ્પો આધારિત પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 11નું હિન્દી વિષયના પાઠ 1થી લઈ અને બધા જ પાઠના એક પાઠમાંથી ઘણા બધા MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો છે એ કાઢેલા છે. તમારી પરીક્ષામાં, પ્રિલિમ્સ પરીક્ષામાં સૌથી વધારે માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે એકેય પ્રશ્ન કાંઈ બહાર નહીં જઈ શકે એવા એકને કેન્દ્રમાં રાખી અને પ્રશ્નો છે એ બતાવેલા છે, અને એ MCQ સાથે એનો જવાબ પણ આપેલો છે. કારણ કે આપણી હિન્દીની વિષયની જગ્યા ખૂબ ઓછી હોય છે, માર્ક્સ મેળવવા પણ ખૂબ જ ભાષાની દૃષ્ટિએ ખૂબ તકલીફવાળા હોય છે. એટલે આ પરીક્ષામાં તમે સૌથી વધારે હિન્દી વિષયવાળા માર્ક્સ લાવો એ માટે દરેક પાઠ અને કાવ્યના એમાંથી બની શકે એટલા તમામ MCQના પ્રશ્નો છે એ બનાવેલા છે, જે તમારી પ્રિલિમ પરીક્ષા માટે, મેન્સની પરીક્ષા માટે પણ ખરેખર ઉપયોગી થશે. તો આ વિડીયોને તમારા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સુધી અવશ્ય પહોંચાડજો, જેથી કરીને આપણા હિન્દી વિષયના તમામ વિદ્યાર્થીઓને છે એનો લાભ મળી શકે. કારણ કે હિન્દી ખૂબ જગ્યાની દૃષ્ટિએ પણ ખૂબ ઓછી જગ્યા આવતી હોય છે, માર્ક્સ પણ આપણે ઓછા લાવતા હોય છે. એટલે આ પરીક્ષામાં ટાટ HSની 2026ની પરીક્ષામાં તમે સૌથી વધારે માર્ક્સ લાવો એ માટેની આ એક પ્રયત્નો રહેલો છે. તો જોઈએ આપણે વિભાગ પ્રમાણે, એમાંય ખાસ કરીને ધોરણ 11નું હિન્દી વિષયના કાવ્ય નંબર 1થી લઈ અને 5 સુધીના આપણે છે આ વિડીયોમાં મૂકશું. ત્યારબાદ બીજો વિડીયો 5થી લઈને 10 સુધીનો, આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના છે એ આપણે વિડીયો મૂકી અને પાઠમાંથી અને કાવ્યમાંથી બની શકે એટલે તમામ પ્રશ્નો છે અહીં દર્શાવેલા છે. તો જોઈએ આપણે આ વિડીયો. મિત્રો, સૌથી પહેલું તો ખાસ તમે એક તો અનુક્રમણિકા છે એ બધી પાકી કરી નાખજો, કારણ કે એમાં કાવ્ય કે પાઠનું નામ, એના લેખક, એનો સાહિત્ય પ્રકાર એવા લગતા પ્રશ્નો પણ છે એ આવતા હોય છે. એટલે એ અહીંયા દર્શાવેલા નથી, પણ આપણે સીધા જ કાવ્ય નંબર 1 એટલે કે પહેલું કાવ્ય છે સાધો દેખો જગ બોરાના, આ કાવ્યમાંથી ભલે નાનું કાવ્ય છે પણ આની અંદરથી મોટાભાગના પ્રશ્નો જે બને છે તેનો આપણે પ્રશ્નો MCQ પ્રકારના બનાવેલા છે અને એનો જવાબ પણ દર્શાવેલો છે. આમ એટલું કરશો તો પરીક્ષામાં લગભગ કોઈ 12 પ્રશ્ન જઈ શકશે નહીં. પહેલો પ્રશ્ન કબીરજીના કવિ છે, તો કબીરના જીવન દર્શન આધારિત કેટલાક પ્રશ્નો છે એ જોઈએ આપણે સૌથી પહેલાં. તો પહેલો છે કબીર કા જન્મ કબ હુઆ થા. અહીંયા ક, ખ, ગ અને ઘ છે, એમાંથી હું મિત્રો ખાલી જવાબ જ વાંચું છું, બધું છે તમે જોઈ લેજો. તો એનો ઉત્તર આવે છે 1398 છે એનો જવાબ છે. બીજો છે કબીર કી મૃત્યુ કિસ વર્ષ હુઈ થી, એની અંદર જવાબ આવે છે 1518. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કબીર કા જન્મ સ્થાન કहाँ माना जाता है, તો એમાં જવાબ આવે છે કાશી વારાણસી. ચોથો પ્રશ્ન છે કબીર કા લાलन पालन करने वाले जुल्हा दंपति का क्या नाम था, તો એમાં જવાબમાં ઉત્તર છે નીર ઓર નીમા. અલગ કલરથી મિત્રો છે જવાબ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન છે કરેલો છે, જે તમને વાંચવામાં પણ ખરેખર અનુકૂળતા રહે છે. ત્યારબાદનો પાંચમો પ્રશ્ન કબીર કિસ ધારા કે કવિ માને જાતે હૈ, ઉત્તર છે નિર્ગુણ સંત પરંપરા. છઠ્ઠો પ્રશ્ન કબીર કે ગુરુ કોણ થે, તો એમાં જવાબમાં આવે છે રામાનંદ. સાતમો પ્રશ્ન કબીરને રામ નામ કે મર્મ કો કિસસે પહોંચાના થા, તો એવો જવાબ છે માનવ પ્રેમ છે. આઠમો પ્રશ્ન કબીર કી શિક્ષા કે બારે મેં ક્યા સત્ય હૈ, તો ABCD એટલે કે ક ખ ગમાંથી જવાબ આવે છે વે નિરક્ષર થે. નવમો છે કબીર કી ભાષા કો ક્યા કહા જાતા હૈ, તો ઉત્તર આવે છે સદ્ધુ કડી. અને 10મો પ્રશ્ન કબીરને કિસકા ખોલકર વિરોધ કિયા, તો એમાં જાતિપાતિ, બાહ્યાડંબર, મૂર્તિપૂંજા, તો આ રીતે ઉપયુક્ત સભી એવો છે એનો જવાબ રહેશે. ત્યારબાદ કબીરની રચનાની વાત કરીએ તો 11મો પ્રશ્ન કબીર કી રચનાઓ કા મુખ્ય સંગ્રહ કિસ નામ से जाना जाता है, તો તેમાં જવાબ આવે છે બીજક. બીજક કે કિતને મુખ્ય ભાગ है, તો એનો જવાબ આવે છે 3.
इनमें से कौन सा बीजक का भाग नहीं है? तो उत्तर में आवशे पद। कारण के पद लिखते थे पर बीजक के 3 भाग रमेनी, शब्द और साकी है, तो आमाथी पद छे आवशे। कबीर के कुछ पद और कहाँ संग्रहित है? तो एना जवाब में आवशे गुरु ग्रंथ साहेब। 15मो प्रश्न, कबीर की रचना किस नाम से भी संग्रहित है? तो कबीर ग्रंथावली। त्यारबाद हवे कवि परिचय ने एना जेटला प्रश्नों बने एटला बनी चूक्या। त्यारबाद काव्यनी अंदरथी जे प्रश्नों है एमां पहेलो छे एटले के 16मो, बोराना शब्द का क्या अर्थ है? तो एनो जवाब आवशे पागल होना। कबीर के अनुसार साची एटले के सच्चे बात कहने पर लोग क्या करते थे? तो जवाब आवशे मारने दौड़ते हैं। कबीर के अनुसार लोग किस पर विश्वास करते हैं? तो उत्तर है झूठी बातों पर, यानी कि झूठे बोलने वालों पर। 19मो प्रश्न, हिंदू किस भगवान को अपनाना बताते हैं? तो एमा जवाब आवशे राम। 20मो प्रश्न, मुसलमान खुदा का कौन सा नाम लेते हैं? तो एना जवाब में आवशे रहमान। पद के अनुसार रहमान एवो शब्द वपरायेलो है। 21मो, कबीर के अनुसार हिंदू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ते हैं? तो तेनो जवाब आवशे राम और रहमान के नाम पर। 22मो, आतम छोड़ी पाषाण पूजे में पाषाण का क्या अर्थ है? मित्रों एना जवाब में आवशे पत्थर। पत्थर पूजने वालों का ज्ञान कैसा है? जवाब आवशे थोथा, यानी कि व्यर्थ। थोथा शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर है खोखला। 25मो प्रश्न, आसन मार डिंब धरी बैठे में डिंब का अर्थ क्या है? एनो उत्तर है पाखंड, यानी कि अहंकार। 26मो प्रश्न, लोग क्या पूजने में लगे हैं और तीर्थ व्रत भूल गए हैं? तो एनो जवाब आवशे पीपर पाथर। त्यारबाद है बाहरी दिखावे के लिए लोग क्या धारण करते हैं? तो तेना जवाब में आवशे उपयुक्त सभी, એટલે કે माला, टोपी, छाप, तिलक। 28मो, साखी शब्द गावत भूले में लोग क्या भूल गए हैं? तो एनो जवाब आवशे आत्म खबर, એટલે કે आत्मज्ञान। घर घर मंत्र देने वाले लोग किस बात के अभिमानी हैं? तो तेना जवाब आवशे माया के। 30मो प्रश्न, कबीर के अनुसार अंत समय में कौन पछताएगा? तो उत्तर है गुरु और शिष्य दोनों। पीर ओलिया क्या पढ़ते हैं? तो किताब अने कुराना। कबीर के अनुसार ढोंगी धर्मगुरु अपने शिष्यों को क्या बताते हैं? एना जवाब में आवे छे कब्र। त्यारबाद है 33मो, कबीर के अनुसार खुदा ईश्वर को कौन नहीं जान पाया? एना जवाब आवे छे ढोंगी पीर ओलिया। 34मो प्रश्न, मुरीद शब्द का क्या अर्थ है? तो एनो जवाब से शिष्य। 35मो, हिंदुओं के बारे में कबीर ने क्या कहा है कि उनके घर से क्या भाग गए हैं? तो जवाब में आवे छे दया। तुर्कों के बारे में कबीर ने किस गुण के अभाव की बात की है? तो एना जवाब में आवे छे मेहर, यानी कि कृपा दया। मेहर शब्द का क्या अर्थ है? तो कृपा दया। और हिंदू और मुसलमान किन दो तरीकों से पशु हत्या करता है जिसका कबीर ने उल्लेख किया है? तो एना जवाब है झटका और जिबा। 39मो प्रश्न, आग दो घर लगी से कबीर का क्या तात्पर्य है? तो एना उत्तर है दोनों धर्मों में कट्टरता और हिंसा व्याप्त है। 40मो प्रश्न, कबीर के अनुसार दीवाना कौन है? तो उत्तर है जो सत्य को पहचानता है। पद के आधार पर ऐसा उत्तर मिलता है। કેટલાક શબ્દાર્થ અને વ્યાકરણને આધારિત પ્રશ્નો પણ જો પૂછાઈ શકે તો એ પણ જોઈએ। पत्याना शब्द का क्या अर्थ है? तो जवाब है विश्वास करना। अस्नाना का क्या अर्थ है? तो उत्तर है स्नान। 43मो के साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो साक्षी, वो जवाब है। शब्द का क्या अर्थ है? तो एनो जवाब आवे शब्द। शयाना का अर्थ क्या है? तो चतुर या समझदार। कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को थोथा कहा है? तो एना उत्तर है बाह्य नंबर और पत्थर पूजा वाले ज्ञान को। त्यारबाद है गुमान शब्द का अर्थ है घमंड। 48मो से जीवह करना किस धर्म से जुड़ी प्रक्रिया है जिसका कबीर ने उल्लेख किया? तो ना जवाब आवे मुसलमान। झटका मारना किस संदर्भ में कहा गया है?
उत्तर से हिंदुओं द्वारा पशु वध का तरीका। और 50वां प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में कबीर किसे नसीहत दे रहे हैं? तो धर्म के ठेकेदारों को। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों एक नानुं एवुं काव्य छे साधो देखो जगबोरामांथी 50 प्रश्नों छे। तमे समझी शको कि आनी बार एक प्रश्न प्रिलिममां आवे ज नहीं। जो पूछाय तो आमांथी ज आवी शके, कारण के 50 प्रश्नों आपणे आनी अंदरथी छे बनावेला छे। त्यारबाद बीजुं छे बापू की कुटिया में। ए जे पाठ छे रामवृक्ष बेनीपुरी छे एना लेखक एना MCQ आमांथी पण आपणे जोईए। बापू की कुटिया में पाठ के लेखक कौन है? तो तेनो जवाब से रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? जवाब आवे छे बिहार। तीजो प्रश्न જોઈએ, लेखक किस आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए? तो एनो जवाब है असहयोग आंदोलन। लेखक कुटिया में कहाँ बैठकर पंक्तियाँ लिख रहे थे? जवाब है पायताने। लेखक को किस बात का रंज है? तो उत्तर है बापू से उनके जीवन काल में न मिल पाने का। छठवां प्रश्न, बापू का बिस्तर किस चीज़ की चटाई पर बना था? तो जवाब से खजूर। बापू के बिस्तर को किस कपड़े से ढका गया था? खादी। कुटिया के दाहिने द्वार के निकट क्या रखा है? घड़ी और खड़ाऊ। बापू के तीनों बंदर क्या इशारा कर रहे हैं? आँख, जुबान और कान बंद करने का। 10वां प्रश्न, बापू के चरखे का क्या नाम था? येरवदा चक्र। दीवार पर मिट्टी की उभार से क्या लिखा था? उत्तर है ओम। 12वां प्रश्न, बापू के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। बिस्तर के सिरहाने दीवार से सट्टी क्या रखी थी? काठ की तख्ती। रद्दी कागज को डालने के लिए किसका टोकरा था? पत्ती का। बापू का थूकदान किस धातु का बना था? पीतल। सेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? उबड़ खाबड़। सेल्फ के ऊपर से पेपरवेट का काम क्या करता था? पत्थर का टुकड़ा। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? मित्रों खास याद रखजो, कारण के आनी अंदरथी अलग अलग वाक्यों आवे छे। तो आनो जवाब है प्रेम ही भगवान है। सेल्फ पर टंगी तख्ती पर क्रोध के बारे में क्या लिखा था? तो यदि सच्ची राह पर हो तो क्रोध की जरूरत नहीं। 20वां से प्रश्न, बापू के सेल्फ के पहले खाने में कौन सी पुस्तक थी? सार्थक गुजराती जोड़नी कोश। इनमें से कौन सी पुस्तक सेल्फ में थी? तो उपयुक्त सभी, એટલે કે हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस। सूत आदि रखने के लिए किसका डिब्बा था? तो एल्यूमिनियम का। लेखक के अनुसार बापू की मृत्यु की खबर सुनकर बंदरों ने क्या कर लिया? उन्होंने कान, आँख और मुंह सदा के लिए बंद कर दिए। 24वां प्रश्न, बापू की कुटिया में इनमें से कौन से महापुरुष आते थे? तो नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, उपयुक्त सभी। झूठ शब्द में निहित नहीं है, खाली जग्या में है। खाली जग्या में शू आवशे? तो छल करने में। बापू की कुटिया के कितने भाग है? 3। कुटिया के मध्य भाग यानी कि कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? उत्तर है राजकुमारी अमृत कौर। कुटिया का तीसरा भाग क्या था? स्नानागार। बापू अपने कमोड को किससे साफ करते थे? तो लकड़ी के ब्रश से। कुटिया की दीवारें किसकी बनी थी? बांस की पट्टियों से। कुटिया की दीवारों पर किसका लेप लगाया गया था? मिट्टी का। लेखक ने विश्ववंद व्यक्ति किसे कहा है? तो जवाब में आवे छे गांधी जी को। बेनीपुरी जी ने किस वर्ष में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की? 1920। बेनीपुरी जी की विशिष्ट ख्याति किस क्षेत्र में है? ललित निबंध। माटी की मूर्तें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है? रेखाचित्र। लेखक को अपनी लेखनी सार्थक करने का सौभाग्य कहाँ बैठकर मिला? उत्तर है बापू के पायताने बैठकर। बापू का बिस्तरा कैसा था? तो श्वेत और शुभ्र। अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? यह कौन कहता है? तो खड़ी और खड़ाऊ।
बापू के चरखे की तुलना लेखक ने किससे की? तो कृष्ण की वंशी से। बापू के कमरे में रोशनी और हवा की स्थिति कैसी थी? बहुत काफ़ी थी, बहुत कम थी, काफ़ी थी, एમાં जवाब आवશે काफ़ी थी। लेखक ने कठोर चट्टान पर पटक दिया अनुभव कब किया? बापू की मृत्यु के याद आने पर हे राम शब्दों के स्मरण से। पाँव फैलाकर सोने की दिशा के लिए पाठ में क्या शब्द आया? तो जवाब આવે છે पायताना। ત્યારબાદ છે કે बिना पलक झपकाए के लिए पाठ में प्रयुक्त शब्द है निर्निवेश, निर्निमेश। बापू के बिस्तर के पास रखी तुलसी की माला लेखक को कैसी लगती है? जवाब આવે છે बापू के हाथों में। रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ? 1968। लेखक ने बापू की वस्तुओं के साथ कैसा महसूस किया? तो बापू का सानिध्य, अपने आसपास होना। मिथ्या शब्द का अर्थ है झूठ। कुटिया में फिनाइल की शीशी कहाँ रखी थी? तो स्नानागार में। बापू के बिस्तर के पास रखी कलमदान में क्या था? तो जादुई लेखनी यानी कि कलम। तरुण भारत और किसान मित्र क्या है? तो बेनीपुरी जी का संपादित पत्रिका है। तो आ रीते बापू की कुटिया में एमांथी पण आपणे 50 प्रश्नो मित्रों बनावेला छे। एटला करशो तो परीक्षामां तमने खरेखर आमांथी कोई नवो प्रश्न हवे नहीं बनी शके एटली कुशलताथी मित्रों आ बनावવાનો प्रयत्न करेलो छे। तीजो छे पुरानी चीज के पक्ष में, जे राजेश जोशी द्वारा लखेलू छे। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1946 एनो छे जवाब छे। राजेश जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर आवे छे मध्य प्रदेश। लेखक का जन्म मध्य प्रदेश के किन जिले में हुआ था? नरसिंहगढ़। राजेश जोशी किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं? प्रगतिशील कवि। शिक्षा पूरी करने के बाद लेखक ने सबसे पहले क्या शुरू किया? पत्रकारिता। राजेश जोशी ने इनमें से किस क्षेत्र में नौकरी की? तो बैंक એટલે કે રેલવે, પોલીસ, बैंक અને સેના, તેમાંથી बैंक આવશે। માખનલાલ ચતુર્વેદી પુરસ્કાર किसे प्राप्त हुआ? तो राजेश जोशी। काव्य आधारे કેટલાક પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા કરીએ આપણે। कविता में किन चीज़ों के महत्व को बताया है? तो पुरानी चीज़ों में। दुनिया बदलने के बावजूद क्या हमेशा काम आती है? पुरानी चीज़ें। कविता में पुरानी चीज़ के रूप में किसका उदाहरण दिया है? तो नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू नुस्खे। सदियों पुराने का क्या आज भी काम आते हैं? तो पहाड़ और स्मृतियाँ। प्राचीन स्मृतियों के किनारे क्या बसी है? सभ्यताएं। आज का युग किसका युग है? तो कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग। कंप्यूटर के युग में भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? तो हमारी पुरानी साइकिलें। त्यारबाद 28वां प्रश्न, आदमी के काम क्या क्या आते हैं? तो सच और झूठ दोनों। बहस मुबाहिसों के बावजूद क्या तय है? उत्तर है सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है। हथियारों का शोर ज़्यादा क्यों है? तो वे ज़्यादा संगठित है। शोर मचाने के मामले में दूब और वृक्ष कैसे है? तो वे कम शोर मचाते हैं। कवि के अनुसार विनम्रता क्या नहीं है? तो विनम्रता कायरता नहीं है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद क्या बची रहती है? तो पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियों में क्या क्या बचा रहता है? थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। कविता के अनुसार मनुष्यता को बचाने के लिए क्या जरूरी है? निरंतर संघर्ष। आधुनिकता के बढ़ते कदमों में से किसका खतरा प्रबल है? तो दुनिया के नष्ट होने का। कवि जीवन की किस चीज़ की खोज में बेचैन है? जवाब आवश्य संभावना की खोज में। बहस मुबाहिस शब्द का अर्थ क्या है? तर्क वितर्क। बनिस्बत शब्द का क्या अर्थ है? के मुकाबले अथवा अपेक्षा। पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता का स्वर कैसा है? सकारात्मक और संरक्षणवादी, यानी कि सच और मनुष्यता को बचाने का स्वर।
दुब कम शोर मचाती है में दुब का किसका प्रतीक है? तो विनम्रता और सादगी का। हथियारों के शोर के माध्यम से कवि के किस ओर संकेत कर रहा है? तो हिंसा और संगठित बुराइयां। 43वां है, स्मृतियों की मिठास से क्या तात्पर्य है? तो जवाब से अतीत की सुखद यादें। ત્યારબાદ છે ટીસ शब्द का क्या अर्थ है? तो हल्का दर्द यानी कि पीड़ा। कवि पुरानी चीज़ों के पक्ष में क्यों है? क्योंकि उनमें जीवन की निरंतरता और अनुभव है। आ रीते मित्रों आ काव्यमांथी આપણે 45 જેટલા પ્રશ્નો છે એ બનાવેલા છે। ત્યારબાદ ચોથો પાઠ છે ચંદ્રશેખર આઝાદ, એટલે કે એના લેખક છે સદગુરુ શરણ અવસ્થી। મિત્રો તમે અનુક્રમણિકા છે એ પાકી કરી લેજો, કારણ કે એમાંથી પણ પ્રશ્નો આવતા હોય છે। तो चंद्रशेखर आज़ाद संस्मरण के लेखक कौन है? सदगुरु शरण अवस्थी। सदगुरु शरण अवस्थी का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1901। विस्मृति का वरदान किससे प्राप्त होता है? तो सत्संग और विराग के अनुष्ठान से। आज़ाद लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? तो भैया। आज़ाद लेखक के घर किसके मित्र होने का कारण आते थे? तो छोटे भाई के मित्र होने के कारण। आज़ाद को अपनी सुरक्षा के लिए किस पर पूरा भरोसा था? तो माउजर पिस्तौल और कारतूस की पेटी पर। आज़ाद ने लेखक को घंटों किसके बारे में समझाया था? तो महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता। आज़ाद का शरीर किसका पुंज था? तो उस जवाब से शक्ति का। आज़ाद की आंखों में किसकी प्रतिकृति थी? आत्मनिर्भरता की। आज़ाद किस प्रकार की पगड़ी में अच्छे लगते थे? तो कलगीदार पंजाबी पगड़ी। लेखक ने आज़ाद को किन कपड़ों में भी देखा था? सूट और हैट में भी। आज़ाद का मन अंदर से कैसा था? तो मक्खन सदृश्य कोमल। आज़ाद के पास किन के लिए सहानुभूति और आंसू थे? तो उत्तर है कि निरीह प्राणी जो क्रांति के मार्ग में नष्ट हो जाते थे। आज़ाद किन विषयों पर तर्क वितर्क को वाग्विलास समझते हैं? ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य। 18वां प्रश्न, आज़ाद किस प्रकार की सभ्यता को प्रतिकूल थे? जवाब से हिंसक, शैथिल्य और पलायनवाद। 19वां प्रश्न, आज़ाद की वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य क्या था? तो जवाब है राजनीतिक अपराध। लेखक ने अपनी स्मृतियों की पंक्तियाँ किसे अर्पित की है? तो एना जवाब में आवे छे आज़ाद को। 21वां प्रश्न, आज़ाद को अपने किस गुण पर पूर्ण विश्वास था? तो एना जवाब आवे छे आत्मविश्वास यानी कि आत्मनिर्भरता। कोष का अर्थ पाठ के अनुसार क्या है? तो एना जवाब से 2 मील या 3.2 किलोमीटर की माप। खास शब्द का क्या अर्थ है? तो खुजली। लेखक के अनुसार आज़ाद की स्मृति कैसी है? मन का पुण्य। आज़ाद की वाणी में क्या नहीं था? तो शोभा। आज़ाद किस प्रकार के कुर्ते और धोती में खिलते थे? तो खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती। आज़ाद के लिए विस्मृति क्या है? समय के प्रवाह को रोकने वाली। आज़ाद किस सिद्धांत के बड़े पोषक थे? जीवन की पवित्रता और नैतिक उच्चता। आज़ाद का निधन किस वर्ष में हुआ? तो तेनो जवाब है 1973 है। मित्रों आमां बतावेलुं छे लेखनी अनुसार सदगुरु शरण जे कवि है लेखक है आपड़ा एने 1973 बताव्युं, परंतु इतिहास में आज़ादनुं छे 1931 एवुं छे बतावेलुं छे, पण आपणे पाठने आधारे 1973 एवो शब्द प्रयोग वापरेलो छे। लेखक ने आज़ाद को कैसा पुरुष कहा? वीर पुरुष। आज़ाद के मन पर लगी चोट किससे ठीक हो पाती है? तो विस्मृति के सहारे। आज़ाद ने अपनी वीरता से किसे प्रमाणित कर दिया था? तो अपनी कार्य पद्धति को। लेखक ने आज़ाद की प्रतिभा को क्या मानकर अर्चना करने को कहा? महानता का अग्रदूत। आज़ाद की माउजर पिस्तौल कहाँ लटकती थी? तो कंधे पर। लेखक के अनुसार विस्मृति का बोझ कहाँ है?
कंधे पे माउजर और कट्टी पर पिस्तौल जवाब आवशे। लेखक के अनुसार विस्मृति का बोझ क्या है? तो स्मृति का बोझ। 40वां प्रश्न, आज़ाद का व्यक्तित्व कैसा था? आकर्षक। आज़ाद किसके शक्ति के पुंज थे? तो आज़ाद शक्ति के पुंज थे। आज़ाद ने लेखक को कहाँ कहाँ दर्शन दिए? सड़क, रेलवे स्टेशन और विभिन्न स्थानों पर। 44वां प्रश्न, आज़ाद की आंखों में किसका भरपूर प्रवाह था? तो उष्ण रक्त का। आज़ाद के लिए पाप और पुण्य क्या थे? तो एनो जवाब से अनेकार्थी, એટલે કે बहुत महत्वपूर्ण अनेकार्थी एवो जवाब आवशे। लेखक ने आज़ाद को कैसा मित्र बताया? ईमानदार और वैचारिक दृढ़ता वाला। तो आ रीते आज़ादमांथी पण आपणे 49 જેટલા પ્રશ્નો છે। ત્યારબાદ પાંચમું છે શિક્ષક કે નામ પત્ર। એમાંથી જે MCQ બને છે એ જોઈએ। એના લેખક છે અબ્રાહમ લિંકન। સૌથી પહેલાં એનો પરિચય જોઈએ। शिक्षक के नाम पत्र में लेखक कौन है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म कब हुआ था? 1809। अब्राहम लिंकन का निधन कब हुआ? 1865। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के किस राज्य में हुआ था? तो केटक। बचपन में लिंकन किस प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे? तो चूल्हे की आग। लिंकन ने किस स्थान पर वकील का पदभार संभाला था? इलिनॉस। लिंकन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 16वें। लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है? गुलामी प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए। 9वां प्रश्न, यह पत्र लिंकन ने किसे लिखा था? तो अपने बेटे के अध्यापक को, यानी कि शिक्षक को। इस पाठ की शैली क्या है? पत्र शैली। હવે જોઈએ આપણે આ પત્ર એટલે કે પાઠને કાવ્યના આધારે જેટલા પ્રશ્નો છે। 11મું છે, लिंकन के अनुसार क्या सभी आदमी न्यायप्रिय होते हैं? तो जवाब से नहीं। लिंकन के अनुसार हर बदमाश की तरह दुनिया में और कौन होता है? तो साधुचरित पुरुषोत्तम। 13मुं है, स्वार्थी राजनेताओं के विपरीत दुनिया में और कौन होते हैं? पूरी जिंदगी न्योछावर करने वाले नेता। दुश्मन होने के साथ साथ जीवन में और क्या होते हैं? तो इसमें जवाब से सहायक मित्र। 15मुं है, लिंकन के अनुसार कौन सा पैसा ज़्यादा मूल्यवान है? तो तेना जवाब आवे छे पसीना बहाकर कमाया हुआ धन। 16मुं है, लिंकन अपने बेटे को क्या झेलना सिखाने की बात करते हैं? तो जवाब से हार। बेटे को किससे दूर रखने की सीख दी गई है? तो जवाब आवे से ईर्ष्या द्वेष। किसे झुकाना सबसे आसान होता है? तो जवाब है गुंडों को। लिंकन ने किसे अद्भुत वैभव कहा है? पुस्तक भंडार को। पुस्तकों के साथ साथ बालक को किसके लिए फुर्सत मिलनी चाहिए? सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस करने के लिए। 21वां प्रश्न, पाठशाला में लिंकन के बेटे को क्या सबक मिलना चाहिए? तो बेईमानी की सफलता से सीधे सीधे टकराए असफलता श्रेयकर है। लिंकन बेटे को किस पर पक्का विश्वास रखने की सीख देते हैं? अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर। भलों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? तो भलाई करनी चाहिए। टेढ़ों यानी कि दुष्टों के क्या सिखाने की बात कही गई है? तो भीड़ में शामिल न, तो एनो जवाब आवे है सबक। 25वां है कि भीड़ के बारे में लिंकन की क्या सलाह है? तो भीड़ में शामिल न होने का साहस छुटाओ। 26वां प्रश्न, सबकी बातें सुनने के बाद उन्हें कहाँ जाना चाहिए? तो उत्तर से सत्य की छलने में। क्या आंसू बहाने में शर्म करनी चाहिए? नहीं। किसे मानने से इनकार करना सिखाना चाहिए? तो ओछेपन को। किससे सावधान रहने की सलाह दी गई है? चाटुकारी से। क्या बेचना उचित बताया गया है? उत्तर से ताकत और अक्ल की लागत। किसे कभी नहीं बेचना चाहिए? तो अपना हृदय और अपनी आत्मा। अगर भीड़ धिक्कारते हुए चिल्लाए तो क्या करना चाहिए? तो अनदेखा करना। सत्य और न्याय की खातिर क्या करना चाहिए? तो धरती में